آج ہی لگوائیں کینن فاسٹ الیکٹرک واٹر ہیٹر جو دے آپ کو بجلی کی 80% تک بچت. اس کا بلو ڈائمنڈ انر ٹینک, ورلڈ فلو ٹیکنالوجی اور PUF انسولیشن رکھے پانی کو زیادہ دیر تک گرم, جبکہ ہائی میگنیشیم راڈ, ABS شیل اور ارتھ لیکیج سرکٹ بریکر بنائے کینن الیکٹرک واٹر ہیٹر کو عام گیزرز کے مقابلے میں زیادہ. اسلام آباد سیکٹر I-10 میں دھماکے کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا. اسلام آباد پولیس نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح GIT قائم کر دی. DG آپریشن سہیل ظفر چٹھا نے GIT کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے تحت SSP CTD کی نگرانی میں 8 رکنی GIT ٹیم تحقیقات کرے گی. امریکہ کے اسلام آباد میں دھماکے کی شدید مذمت, انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور دیگر حملوں میں جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے. نیڈ پرائس نے کہا کہ سیکیورٹی معاملات پر پاکستانی شراکت داروں سے رابطے میں ہے. امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ ہے. دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کرنے کو تیار ہے. امریکی کانگریس نے $1.7 ٹریلین کا فنڈنگ بل منظور کر لیا. بل میں پاکستان کے لیے $20 کروڑ کی رقم مختص. امریکی اخراجاتی بل میں پاکستان کے لیے مختص کی جانے والی یہ رقم جمہوریت کے فروغ اور صنفی مساوات کی ترجیحات کے لیے استعمال کی جائے گی. پہلے کے مقابلے میں پاکستان کو دی جانے والی یہ رقم بڑھا دی گئی ہے. وفاقی وزیر و رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ صوبائی اسمبلیاں توڑتے ہوئے آغاز KPK سے کرنا چاہیے تھا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سعد رفیق نے لکھا کہ اب بھی اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں, لیکن یہ ایک بلف کال تھی. فوراً فنڈنگ پکڑنے جانے کے بعد پھر عمرانی سیاست کے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. تحریک انصاف کی رہنما مسرت جمشید چیمہ نے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک باقاعدہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور امپورٹڈ حکومت کا سارا زور اپنی کرپشن بچانے پر ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بسنجو کی زیر صدارت صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس میں فیصلہ. حساس اضلاع میں مزید نفری اور وسائل کی فراہمی کی جائے گی. اجلاس میں ہدایت کی گئی کہ سیکیورٹی ادارے کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں گے. گوادر میں دھرنے اور احتجاج سے پیدا ہونے والی صورتحال کا خصوصی طور پر جائزہ لیا جائے گا. سائبیرین ہوائیں چلنے سے شمالی بلوچستان اور سندھ میں سردی کی شدت میں اضافہ. وادی زیارت میں درجہ حرارت -10 تک پہنچ گیا, جبکہ کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی. بلوچستان کی کان مہترزئی, توبہ چکزئی, خانوزئی میں درجہ حرارت -9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے اتوار سے بارش اور برف باری برسانے والے مغربی سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل ہونے کی پیشگوئی کرتے ہوئے شمالی علاقہ جات اور بلوچستان میں شدید سردی کی وارننگ جاری کر دی. شدید دھند کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات سے بند. لاہور ملتان موٹر وے فیض پور سے درخانہ تک دھند کی وجہ سے بند. موٹر وے M4 کو فیصل آباد سے عبدالحکیم تک, جبکہ موٹر وے M5 کو شیر شاہ سے ترنڈا محمد پناہ تک بند کر دیا گیا. ترجمان موٹر وے پولیس سید عمران احمد کا کہنا ہے کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے. روڈ یوزرز آگے اور پیچھے دھند والی لائٹس کا استعمال کریں. ملک بھر میں کورونا کی چھٹی لہر کے وار جاری. جان لیوا وائرس سے ایک اور مریض لقمہ اجل بن گیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4403 کورونا ٹیسٹ کیے گئے, جس میں 13 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. مہلک وائرس میں مبتلا 17 مریضوں کی حالت نازک ہے.
अमेरिका में मौसम सरमा के बड़े तूफान के बायस बेशतर रियासतों और मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी को शदीद बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं का सामना, जबकि 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। सैकड़ों परवाजें मुअत्तल कर दी गई, जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक शदीद मौसम और बर्फबारी के दौरान मुतअद्दिद हिलाकतों की भी इत्तलात है, जबकि जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और केंटकी की हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। और लोगों के चेहरों पर कहकहे बहेरने वाले हर दिल अजीज फनकार मोइन अख्तर का 72वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। फन की दुनिया में मोइन अख्तर वो नाम है जिसके बगैर पाकिस्तानी टेलीविजन और उर्दू मज़ाह की तारीख नामुकम्मल है। लाजवाब डायलॉग डिलीवरी और हर किरदार में हकीकत का रंग भर देने का फन रखने वाले मोइन अख्तर पाकिस्तानी तारीख का सबसे वर्सेटाइल फनकार थे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए पुलिस ने JIT कायम कर दी। जराये के मुताबिक SPCTD की निगरानी में 8 रुकनी JIT इस्लामाबाद धमाके की तहकीकात करेगी। हिसास इदारों के अफसरान SP इंडस्ट्रियल एरिया, SDPO सब्जी मंडी JIT का हिस्सा होंगे। JIT इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए थे। खुदकुश धमाके में हेड कांस्टेबल अदील हुसैन दर्जाए शहादत पर फाइज हुए। आपको एक बार फिर आगाह करें कि इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए पुलिस ने JIT कायम कर दी। जराये के मुताबिक SPCTD की निगरानी में 8 रुकनी JIT इस्लामाबाद धमाके की तहकीकात करेगी। हिसास इदारों के अफसरान SP इंडस्ट्रियल एरिया, SDPO सब्जी मंडी JIT का हिस्सा होंगे। JIT इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए थे। खुदकुश धमाके में हेड कांस्टेबल अदील हुसैन दर्जाए शहादत पर फाइज हुए। अमरीकी कांग्रेस ने $1.7 ट्रिलियन का फंडिंग बिल मंजूर कर लिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने $1.7 खरब के अखराजाती बिल की मंजूरी दे दी। बिल में पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। अमरीकी अखराजाती बिल में पाकिस्तान के लिए मुख्तस की जाने वाली ये रकम जमहूरियत के फ़रोग़ और सनफ़ी मसावात की तरजीहात के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। पहले के मुकाबले में पाकिस्तान को दी जाने वाली ये रकम बढ़ा दी गई है। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से सन 2000 में पाकिस्तान को $25 मिलियन दिए गए थे। बिल में यूक्रेन के लिए $45 अरब की खतीर रकम मुख्तस की गई है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि अमरीकी कांग्रेस ने $1.7 ट्रिलियन का फंडिंग बिल मंजूर कर लिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने $1.7 खरब के अखराजाती बिल की मंजूरी दे दी। बिल में पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। अमरीकी अखराजाती बिल में पाकिस्तान के लिए मुख्तस की जाने वाली ये रकम जमहूरियत के फ़रोग़ और सनफ़ी मसावात की तरवीज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पहले के मुकाबले में पाकिस्तान को दी जाने वाली ये रकम बढ़ा दी गई है। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से सन 2000 में पाकिस्तान को $25 मिलियन दिए गए थे। बिल में यूक्रेन के लिए $45 अरब की खतीर रकम मुख्तस की गई है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका की इस्लामाबाद में धमाके की शदीद मुजम्मत, इंसानी जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इस्लामाबाद और दीगर हमलों में जानों के ज़या पर अफसोस है। नेड प्राइस ने कहा कि सिक्योरिटी मामलात पर पाकिस्तानी शराकतदारों से राब्ते में है। अमरीका हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ है। दहशत गर्दों से निमटने के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम करने को तैयार है।
आपको एक बार फिर आगाह करें कि अमेरिका के इस्लामाबाद में धमाके की शदीद मसम्मत, इंसानी जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इस्लामाबाद और दीगर हमलों में जानों के ज़या पर अफसोस है। नेड प्राइस ने कहा कि सिक्योरिटी मामलात पर पाकिस्तानी शराकतदारों से राब्ते में है। अमरीका हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दहशत गर्दों से निमटने के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम करने को तैयार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 16 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने पर फैसला मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन कालादम करार दिया जाता है। अदालत के सामने दरख्वास्तों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाई गई वोटर लिस्टों को चैलेंज किया गया। वोटर लिस्टों के मामले पर दरख्वास्त गुजार 28 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों को सुनकर वोटर लिस्टों से मुतालिक मामला कानून के मुताबिक हल करे। इलेक्शन कमीशन को यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने से मुतालिक फैसला मुस्तरद करने से पहले वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा पुलिस के नए पाकिस्तानी मुशीर कमिश्नर फैसल शाहकार ने चार्ज संभाल लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसल शाहकार की अमन खिदमात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। तर्जमान UN पुलिस के मुताबिक फैसल शाहकार कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर काम का 30 साला तजर्बा रखते हैं। वो फील्ड के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में भी काम कर चुके हैं। फैसल शाहकार गुज़िश्ता माह IG पंजाब पुलिस के ओहदे से सबकदोश हुए थे। आपको एक बार फिर आगाह करें कि अक़वाम मुत्तहिदा पुलिस के नए पाकिस्तानी मुशीर कमिश्नर फैसल शाहकार ने चार्ज संभाल लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसल शाहकार की अमन खिदमात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। तर्जमान UN पुलिस के मुताबिक फैसल शाहकार कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर काम का 30 साला तजर्बा रखते हैं। वो फील्ड के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में भी काम कर चुके हैं। फैसल शाहकार गुज़िश्ता माह IG पंजाब पुलिस के ओहदे से सबकदोश हुए थे। वफाकी वज़ीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना होती तो आगाज़ KPK से हो सकता था। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साद रफ़ीक ने लिखा कि अब भी असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक ब्लफ कॉल थी। फ़ौरन फंडिंग पकड़ने जाने के बाद फिर इमरानी सियासत के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि अब भी असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक ब्लफ कॉल थी। सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना होती तो आगाज़ KPK से हो सकता था। आपको एक बार फिर आगाह करें कि वफाकी वज़ीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि सूबाई असम्बलियों को अगर तोड़ना होता तो आगाज़ KPK से हो सकता था। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में ख्वाजा साद रफ़ीक ने लिखा कि अब भी असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन ये एक ब्लफ कॉल थी। फ़ौरन फंडिंग पकड़ने जाने के बाद फिर इमरान सियासत के खर्चे कहाँ से पूरे करता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि अब भी असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन ये एक ब्लफ कॉल थी। सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना होती तो आगाज़ KPK से हो सकता था। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कोई कानून पार्लियामान की मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने अपने पैगाम में लिखा कि शहबाज शरीफ ने भी बयान हल्फी दिया था। गवर्नर का नोटिफिकेशन आइन शिकन वज़ीर आला असम्बली तहलील कर सकते हैं। गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का मजीद कहना था कि नजरिया ज़रूरत जिंदा है। फैसला 50-50 है। हुकूमत इस्लामाबाद की बल्दिया का इलेक्शन नहीं करा रही। जनरल इलेक्शन में किस मुंह से जाएंगे। हुकूमत का एजेंडा इमरान को नाअहल करवा कर इलेक्शन आगे ले जाना है। साबिक वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि क्रिकेटर की मुद्दत बढ़ाएंगे, अवाम जाए भाड़ में, अपने केसेस ख़त्म कराएंगे, नैब और जेब की घड़ी हाथ की छड़ी बनाएंगे, उन्हें डिफ़ॉल्ट की परवाह नहीं। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करेंगे कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने अपने पैगाम में लिखा कि शहबाज शरीफ ने भी बयान हल्फी दिया था। गवर्नर का नोटिफिकेशन आइन शिकन वज़ीर आला असम्बली तहलील कर सकते हैं। गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का मजीद कहना था कि नजरिया ज़रूरत जिंदा है। फैसला 50-50 है। हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा रही। जनरल इलेक्शन में किस मुंह से जाएंगे।
हुकूमत का एजेंडा इमरान खान को नाअहल करवा कर इलेक्शन आगे लेकर जाना है। साबिक वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि केयर टेकर की मुद्दत बढ़ाएंगे। अवाम जाए भाड़ में अपने केसेस खत्म कराकर नैब को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी बनाकर इन्हें डिफॉल्ट की परवाह नहीं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क बाकायदा दिवालिया होने के करीब है और इम्पोर्टेड हुकूमत का सारा जोर अपनी करप्शन बचाने पर है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि गुजरते दिन के साथ अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और मुल्क बाकायदा दिवालिया होने के करीब तर है। उनका कहना था कि मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफा हो रहा है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत का सारा जोर अपनी करप्शन बचाने और इक़्तिदार को तोल देने पर है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क बाकायदा तौर पर दिवालिया होने के करीब तर है और इम्पोर्टेड हुकूमत का सारा जोर अपनी करप्शन बचाने पर है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा कि हर गुजरते दिन के साथ अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और मुल्क बाकायदा तौर पर दिवालिया होने के करीब है। उनका कहना था कि मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफा हो रहा है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत का सारा जोर अपनी करप्शन बचाने और इक़्तिदार को तोल देने पर है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब और साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात फ़याज़ुल हसन चौहान ने काबीना की बहाली पर अहम बयान देते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब की आइन शिकनी का रास्ता रोका। आर्टिकल 6 के तहत नाअहल लीग के पिट्ठू गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बयान में फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि अदालत ने आइन शिकन गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके वज़ीर आला और उनकी काबीना को बहाल किया। गवर्नर के गैर आइनी नोटिफिकेशन को अदालत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी, रसवाई उनका मुकद्दर है। गैर आइनी इक़दाम पर गवर्नर पंजाब को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला ने मजीद कहा कि आर्टिकल 6 के तहत नाअहल लीग के पिट्ठू गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अवाम को पता चल गया है कि ये लोग इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साइबेरियन हवाएं चलने से शुमाली बलोचिस्तान और सिंध में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादिये ज़ियारत में दर्जा हरारत -10 तक पहुंच गया, जबकि कराची में भी सर्दी बढ़ गई। बलोचिस्तान की कान मेहतरजई, तोबाचकजई, खानोजई में दर्जा हरारत -9 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने इतवार से बारिश और बर्फबारी बरसाने वाले मगरबी सिस्टम शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई करते हुए शुमाली इलाका जात और बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी। आपको एक बार फिर आगाह करें कि साइबेरियन हवाओं के चलने से शुमाली बलोचिस्तान और सिंध में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादिये ज़ियारत में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया, जबकि कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार रही। बलोचिस्तान की कान मेहतरजई, तोबा अचकजई, खानोजई में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि नोडेरो और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज। धुंध की वजह से सर्दी में इजाफे से गर्म कपड़े और दीगर चीज़ों की मांग में इजाफा हो गया। इलाका में धुंध की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियां पेट्रोल पंप्स पर खड़ी कर दी। धुंध की वजह से हद निकाह कम रह गई। गाड़ियों को फोक लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत जारी। धुंध में कमी के बाद मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात से खुलने लगी। M3 लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। M4 पिंडी भटिया मुल्तान मोटरवे पर भी ट्रैफिक की इजाज़त दे दी गई। मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को सफ़र में एहतियात की हिदायत। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि धुंध में कमी के बाद मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात से खुलने लगी। M3 लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। M4 पिंडी भटिया मुल्तान मोटरवे पर भी ट्रैफिक की इजाज़त दे दी गई। मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद कर दी गई।
موٹر وے پولیس کی شہریوں کو سفر میں احتیاط کی ہدایت۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس موذی وبا کے باعث ایک اور مریض لقمہ اجل بن گیا۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ روز کرونا کے 4403 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 13 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ کرونا کیسز کی شرح 0.30% ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 4.76% اور پشاور میں 0.60% ریکارڈ کی گئی، جبکہ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 0.32% ریکارڈ کی گئی۔ رحیم یار خان کے گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کی 75 سالہ خدمات پر بہاولپور ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ریٹائرڈ اساتذہ کو ان کی بہترین خدمات پر سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ مزید صورتحال جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر عبدالغفار مہر کی رپورٹ میں۔ ریٹائر اساتذہ قوم کا اثاثہ ہے، ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اساتذہ کے اعزاز میں گورنمنٹ سیکنڈری اسکول مہدی گوٹ میں گولڈن جوبلی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام بہاولپور ٹیچر ایسوسی ایشن کے وزیر احمد مار اور سینئر وکیل مختار الحسن گل ایڈوکیٹ نے کیا۔ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول مہدی گوٹ 75 سال سے تعلیمی خدمات سر انجام دے رہا ہے، لیکن اس اسکول پر عوامی نمائندوں نے کبھی توجہ نہیں دی۔ اس تقریب کا مقصد عوامی نمائندوں کی توجہ اس تاریخی اسکول کی طرف کروانا ہے۔ اس علاقے میں کالج کی اشد ضرورت ہے۔ تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید مختار الحسن گل ایڈوکیٹ، رانا نبی احمد، جام اللہ یار ولانا، وزیر احمد مار، شہد اقبال تریلی، ریس خلیل احمد تریلی و دیگر نے مطالبہ کیا کہ مہدی گوٹ یا سنجر پور کے گرد و نواح میں کالج کی تعمیر وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اگر کالج نہ دیا گیا تو احتجاج پر بھی مجبور ہو جائیں گے۔ اس علاقے میں بچے تعلیم سے مستفید ہو سکیں گے اور سفری پریشانیوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا۔ تقریب کے اہتمام پر ریٹائرڈ اساتذہ نے اپنے اعزاز میں ہونے والی تقریب پر خوشی کا اظہار کیا اور آخر میں بہترین کارکردگی پر یادگاری سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ ٹنڈو اللہ یار میں اس وقت پاکستان راہ حق پارٹی کی جانب سے ٹنڈو اللہ یار بچاؤ ریلی نکالی جا رہی ہے، جس میں ضلعی اور صوبائی قیادت کے ساتھ ساتھ عوام و کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے محمد عارف ارائیں ریلی میں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی عارف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ٹنڈو اللہ یار میں، حیدرآباد میرپور خان روڈ کے اوپر، جہاں راہ حق پارٹی ٹنڈو اللہ یار کی طرف سے ٹنڈو اللہ یار بچاؤ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تو اس وقت جو ہے صوبائی نائب صدر جو ہے راہ حق پارٹی ٹنڈوالہ اور ضلعی صدر ٹنڈوالہ یار سید سکندر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس ریلی کو نکالنے کا کیا مقصد ہے اور کیا ان کے تحفظات ہیں اور کیا وجہ ہے کہ وہ یہ جو ہے احتجاجی ریلی نکال رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان راہ حق پارٹی نے ٹنڈو اللہ یار سمارو ریلی نکالی۔ یہ بلدیاتی انتخابی مہم کا آغاز ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں 15 جنوری کو ٹنڈو اللہ یار میں بلدیاتی انتخابات ہونے، تو پاکستان راہ حق پارٹی نے آج یہ عوام کے اندر شعور کو بیدار کرنے کے لیے آگاہی مہم کے طور پر یہ ریلی نکالی ہے۔ اور شاہ صاحب ایک آپ کے سیاسی مخالف جو ہے آپ کے اوپر یہ تھوڑی تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے تنقید برائے تنقید کرتے ہو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ شہر کا کام بھی چل رہا ہے، نصرپور روڈ کا کام بھی چل رہا ہے، چمبر روڈ کا کام بھی چل رہا ہے، اس کے باوجود آپ سمجھتے ہو کہ یہ شہر کے اندر کام نہیں ہو رہے صحیح طریقے سے، شہر کے جو فنڈز ہیں ان کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ یہ جو بھی بات کر رہا ہے اسے کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس وقت یہ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، کہ جس وقت الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی کہ آپ یہ کام نہیں کروا سکتے، اس پابندی کے دور میں یہ کام کروائے جا رہے ہیں۔ اور یہ 24 جولائی سے پہلے بھی کام شروع ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی الیکشن ختم ہوئے یہ کام ختم ہو گیا ترقیاتی کام، لیکن اب جیسے ہی الیکشن اناؤنس دوبارہ ہوئے دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ الیکشن سے 15-20 دن پہلے کام کرواؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ جو کام ہم کروا رہے ہیں یہ پائیدار کام نہیں ہے اور اس کا پول فوراً کھل جائے گا، تو اس لیے یہ بالکل 15-20 دن پہلے انہوں نے کام شروع کیا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کے قواعد کی بھی خلاف ورزی ہے اور عوام بھی اس سے بیوقوف نہیں بنے گی۔ جی آپ نے سنا کہ جیسے سید سکندر شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ جو کام ہو رہے ہیں یہ صرف الیکشن کو مد نظر رکھ کے جو ہے کام کروائے جا رہے ہیں، ان میں پائیداری نہیں ہے اور یہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے۔ تو ہم عوام میں آگاہی دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اگر کسی کو کام کرنا ہوتا تو پچھلے 10 سے 15 سال موجود تھے ان کے بعد، لیکن یہ الیکشن کے وقت میں ہی کام کرنا کیوں ضروری تھا؟
बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि पेशावर के बाद मर्दान में भी पहली बार अबाबिल पुलिस स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया गया। 12 हैवी मोटरसाइकिल पर मुश्तमिल 24 जवान शहरी इलाकों में 24 घंटे गश्त पर मामूर होंगे। मज़ीद तफसीलात देखते हैं फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। जब जुराइम पेश अफराद अपनी तरीक़ा वारदात में तब्दीली लाते हैं तो कानून के रखवाले भी जुराइम पर काबू पाने और शहरियों की जान व माल की हिफाजत की खातिर नए तरीके अपनाते हैं। इसी हवाले से DIG मर्दान मोहम्मद अली खान गंडापुर ने जिला मर्दान में अबाबिल स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। अबाबिल स्क्वाड के क़याम से जिले पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर, स्ट्रीट क्राइम्स और इसी तरह गैर कानूनी सरगर्मियों में कमी आ सकेगी। और उसमें जो फोकस है बुनियादी मकसद वो एक तो ज़ाहिर की है कि जी जराइम खासकर स्ट्रीट क्राइम वो इसमें अहम है, ताकि हम ये चाहेंगे कि जो हमारे मर्दान के शहरी हैं तो उनको हम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुहैया करें। हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेवारी है। अबाबिल पुलिस स्क्वाड का खुसूसी दस्ता स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस अनासर के खिलाफ मौसर और बर वक्त कार्रवाई अमल में लाते हुए जिला भर में अमन अमान की फिजा बरकरार रखने में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगा। एक क्राइम पैटर्न है कि जी ये इलाका है, यहाँ पे इस टाइम में ज़्यादा क्राइम के वाक़यात होते हैं या ये रश आवर्स हैं, तो इसमें हमारी प्रेजेंस ज़्यादा होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली वो टेलर मेड होगा हमारा प्रोग्राम। इब्तिदाई तौर पर 12 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल 24 जवान हेवी बाइक्स, असलहा, हिफाजती और दीगर आलात से लेस अर्बन। नारंग मंडी में बल्दिया के चीफ ऑफिसर तारिक महमूद सिंधु की ज़ेर निगरानी तजावुज़ात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी तारिक महमूद सिंधु की ज़ेर निगरानी हैदरी चौक, थाना रोड, हस्तपाल चौक में नजायत तजावुज़ात रखने वालों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया गया और नजायत तजावुज़ात के ज़ुमरे में आने वाले सामान को सरकारी तहवील में ले लिया गया। इस मौका पर बल्दिया के अफसरान राना सज्जाद अनवर, सलीम रज़ा मलिक, मोहम्मद अब्बासुल्ला, इंतज़ार हुसैन, मोहम्मद शफीक चौहान भी हमरा थे, जबकि सेंट्री वर्कर्स ने चीफ ऑफिसर के हुक्म पर सामान उठाकर सरकारी टाले में रखा। वाज़ेह है कि शहरियों की शिकायत की रोशनी में बल्दिया ने कामयाब ऑपरेशन किया। मज़ीद जानते हैं CO बल्दिया चौधरी तारिक महमूद सिंधु की ज़ुबानी। जी, हैदरी चौक कंजेस्टेड एरिया, यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा जाम रहती है। RXC भी है नारंग मंडी, तो इमरजेंसी कुछ लोग आते हैं हॉस्पिटल में, तो ट्रैफिक जाम की वजह से बड़ा मसला रहता है। तो ये हम कर रहे हैं कि इसको रोड का मतलब ये सारा एरिया क्लियर रहेगा। कई को वार्निंग भी कर रहे हैं, जुर्माने भी दे रहे हैं, जिनकी चीज़ें मुश्किल बाहर पड़ी हुई हैं वो भी उठा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम ये रैंडमली इसको करते रहेंगे, चेक एंड बैलेंस भी रखेंगे कि दोबारा चीज़ें अपनी जगह लिमिटेशन। सर गुजारिश है, अक्सर दुकानदार अपना सामान दोबारा रख लेते हैं, इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करें ना। फॉलोअप रखेंगे, एक लिमिट है नाले तक, नाले से आगे नहीं हुए हैं दुकानें। शेल्टर से कोई 3-4 फुट को उनको मिलेगी रिलैक्सेशन। जी जो एक ट्रैफिक के रुकावट का मसला मुश्किल तौर पर है, इसको हम इंशाल्लाह चेक एंड बैलेंस रखेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक के बहाव में कोई आसानी रहे। बहुत शुक्रिया। जी, नारंग मंडी में निजात तजावुज़ात का मसला संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। अल्लाह करे नया CO साहब की कोशिशों से ये मसला हल हो जाए। कमल गुलाटी, कोहिनूर, नारंग मंडी। खपरों मैटरनिटी होम में खवातीन की बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में 150 से ज़ायद खवातीन का मुफ्त चेकअप और फ्री अदवायात दी गई। मज़ीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। किप्रो के सोंजी रोड पर कायम लिटिल स्टार चिल्ड्रेन हॉस्पिटल और मैटरनिटी होम में बच्चों के माहिर डॉक्टर भरत कुमार खत्री की जानिब से खवातीन की बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। फ्री मेडिकल कैंप में खवातीन की बीमारियों की माहिर डॉक्टर तारावंती ने 150 से ज्यादा खवातीन मरीजों का मुआयना किया। कैंप के हवाले से ऐसा है कि हमने एक छोटी सी कोशिश की है, जो अभी प्रॉब्लम्स हमने हाईलाइट की हैं मदर्स की हाइजीन को लेकर, बच्चों की हाइजीन को लेकर, मदर फीड को लेकर, तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है। ये हमने सेकंड टाइम एक कैंप अरेंज किया है जो माओं को अवेयरनेस देने के लिए, मदर्स के अवेयरनेस के लिए, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। तो ये आई होप कि इससे हमारी आवाम को, जो स्पेशली पुअर पेशेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं नॉर्मल रूटीन लाइफ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करने के लिए, तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैंने जो है माशाल्लाह से मरीज़ बहुत अच्छे आए हैं और जो मैंने पहले लगाई थी उसमें और आज में जो उन्होंने दवाई वगैरह ली है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। और इंशाल्लाह हमारा आगे भी जो है कैंप लगाने का प्रोग्राम है, हम मुफ्त में इलाज करेंगे। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट कर रही है
ताकि उनको बार बार समझा रही हैं कि साफ पानी पियो, अपनी सेहत का ख्याल करो और साफ सुथरे रहो। सबसे बेहतरी के साफ सुथरे रहो। फ्री मेडिकल कैंप में आने वाली खवातीन का फ्री अल्ट्रासाउंड भी किया, जबकि तमाम खवातीन को फ्री में अदवियात भी दी गई। डीपीओ रहीम यार खान मियां अख्तर फारूक का एहसन इकदाम। शहीद कांस्टेबल अकबर गोपां के 3 बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल दाखिला करवा दिया गया। तमाम अखराजात और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत महकमा देगा। मजीद देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल गफार मेहर की इस रिपोर्ट में। कुछ अर्सा कबल कच्चा में कांस्टेबल अकबर गुपांग डाकुओं की फायरिंग से शहीद हो गए थे, जिस पर डीपीओ अख्तर फारूक मुतअद्दिद बार शहीद के घर गए और दफ्तर में भी उनके वालिद के साथ मुलाकात होती रही, जिसमें डीपीओ अख्तर फारूक ने शहीद की फैमिली पर खसूसी तवज्जो दी और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अपनी काविशें जारी रखी। गुज़श्ता रोज डीपीओ अख्तर फारूक की हिदायत पर शहीद कांस्टेबल की 2 बेटियों और 1 बेटे को आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिल करवा दिया गया, जिसके लिए डीएसपी अयाज महमूद खान लगारी और इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच हुसैन रजा निजामी अलग सुबह शहीद के घर पहुंचे और तीनों बच्चों को उनके दादा गुलाम कादिर के हमरा सरकारी प्रोटोकॉल में आर्मी पब्लिक स्कूल लेकर पहुंचे, जहां पर डीपीओ अख्तर फारूक ने उन्हें रिसीव करते हुए बच्चों को प्यार किया और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डीपीओ अख्तर फारूक ने शहीद के बच्चों को जब स्कूल में दाखिल करवाया तो प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल रजा बत्तकी ने उन्हें खुश आमदीद कहा। इस मौका पर शहीद की 2 बेटियों ऐशा, फातिमा और बेटे मोहम्मद अहमद को दाखिले करवा दिए गए, जिनको कबल अज यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और दीगर जरूरियात के सामान भी मुहैया कर दिए गए। इस मौका पर डीपीओ अख्तर फारूक ने प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल रजा बत्तकी से खसूसी मुकालमा करते हुए कहा कि शहीद हमारी पुलिस फैमिली का अहम तरीन हिस्सा और इनके बच्चे असासा हैं। एपीसी में दाखिले का मकसद आला और मेयाली तालीम के जेवर से आरास्ता करके बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक बनाना और शहीद को खराज तहसीन पेश करने का एक बहाना भी है। उन्होंने दरख्वास्त की कि शहीद के बच्चों को वो उनके सुपुर्द कर रहे हैं। फूलनगर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन सरदार मोहम्मद आसिफ नकई और ज़िलई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमएनए हल्का NA 140 सरदार तालिब हुसैन नकई ने फूलनगर ता हेड बलोकी रोड का इफ्तिताह कर दिया। आज से ही रोड की तामीर शुरू। हल्का की आवाम में खुशी की लहर। कायदीन की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया। नए तैनात होने वाले आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार ने हंगामी तौर पर आरपीओ कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। पंजाब में बढ़ते हुए क्राइम और मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर को कंट्रोल करने की हिकमत अमली तय की जाएगी। मजीद आईजी पंजाब का क्या एजेंडा होगा, जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबे से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। आप देखें, ये नए तैनात होने वाले आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार खान जो है वो आज उन्होंने अपने दफ्तर में आरपीओ डीपीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो तलब की हुई है और हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि आज जो है वो जिस तरह से मुल्क में दहशतगर्दी की लहर चल रही है, जिस तरह से इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, तो उसको जो है वो लाहौर में खासकर कंट्रोल करने के लिए और सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने के लिए ये एजेंडा जो है वो अपनाया गया है। इसके अलावा हमारे जराये का ये भी कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP और MNAs हैं जिस तरह से अपने काम करवा लेते हैं, और पुलिस को भी इस बात से जो है वो वार्न किया जाएगा कि कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता हो या किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, पुलिस उसके आगे बिल्कुल नहीं झुकेगी। पुलिस वही काम करेगी जो मेरिट पर होगा। जिस तरह से आमिर जुल्फकार साहब का ये भी कहना था कि जो लोग आरपीओ कॉन्फ्रेंस में तशरीफ नहीं ला सकते वो जो है वो वीडियो लिंक के जरिए ये खिताब सुनेंगे और जो है वो मीटिंग में शिरकत करेंगे। जिस तरह से लाहौर में अगर बात की जाए तो आमिर जुल्फकार खान ने जो है वो आते ही तमाम पुलिस अफसरान के साथ एक गर्मा गर्म मीटिंग की, जिसमें जो है वो CCP लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन और तमाम जो है वो लाहौर के जितने भी SPs हैं, जिस तरह से 6 SPs इन्वेस्टिगेशन, 6 SPs जो है वो ऑपरेशन, इसके अलावा SP CIA और SP CRO भी जो मौजूद थे, जिस पर जो है बड़ा वाज़ेह कहा गया कि कोई भी पार्टी जो है वो गलत काम करवाने की कोशिश करे तो किसी का कोई जो है वो गलत काम बिल्कुल नहीं करना, जो मेरिट पर होगा वही काम किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि जिस तरह से 25 दिसंबर की आमद है और नए साल की आमद है, तो उसी तरह से जो है वो पुलिस की जानिब से सख्त जो है वो इंतजाम करने में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि लाहौर में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि सरकारी इमारत हैं
जो कि दहशत गर्दी की खुदा न ख्वास्ता नजर हो सकती है, क्योंकि दहशत गर्दों का ज्यादा टारगेट जो है वो सरकारी बिल्डिंग्स होता है। लाहौर की अगर बात करें तो उसमें आईजी दफ्तर भी है, इसके अलावा सेक्रेटेरिएट भी है, रेलवे स्टेशन भी है और दीगर जो है वो सरकारी अदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। खासकर एलीट की गाड़ियां जो है वो वहां पर तैनात कर दी गई हैं और स्नैपर्स जो है वो छतों पे तैनात कर दिए गए हैं। कुछ ही देर बाद जो है वो आईजी पंजाब जो है वो तमाम आरपीओ और डीपीओ से जो है वो खिताब करेंगे और अपना एजेंडा जो है वो यही बताएंगे कि किस तरह से किस पार्टी का जो है वो साथ देना है, किस पार्टी का साथ नहीं देना। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आ चुकी है कि जो मेरिट होगा वही किया जाएगा और किसी पार्टी की जो है वो अभी बात जो है वो ना सुनी जाएगी, ना किसी के कहने पे कोई गलत काम किया जाएगा। और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो लाहौर में खासकर जो है वो एलीट की गाड़ियां भी बुला ली गई हैं और लाहौर के दाखिली व खारजी रास्तों पर पुलिस की एक भारी नफरी तैनात कर दी है, ताकि कोई भी लाहौर से जाए या लाहौर में इंटर हो तो उसको बिना तलाशी के, बिना जामे तलाशी के जो है वो अंदर आने की या यहाँ से बाहर जाने की इजाजत हरगिज नहीं होगी। जी शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि शानदार डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई, छीना झपटी में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार। डॉल्फिन टीम ने स्टॉप एंड सर्च ऑपरेशन के दरमियान 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। तर्जमान डॉल्फिन फोर्स के मुताबिक डॉल्फिन टीम ने मुल्जिमान के फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्जिमान के कब्जा से पिस्तौल, 2 मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुल्जिमान मुसलसल 3 दिन से इकबाल टाउन, करीम ब्लॉक, गुलशन, इकबाल और मुल्हिका इलाकों में वारदातें कर रहे थे। तर्जमान के मुताबिक आज भी मुल्जिमान शहरी से गन पॉइंट पर मोबाइल छीन कर फरार हुए थे कि पकड़े गए। पॉलिटिकल असिस्टेंट बराए इंसानी हकूक रॉबिन्सन अजीज का सरगंगा राम अस्पताल का दौरा, मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। रॉबिन्सन अजीज फ्रांस ने सर गंगाराम अस्पताल में क्रिसमस की खुशी में मुनक्किदा तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत के दौरान अस्पताल के मसीही बरादरी के अमले को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने नए शुरू होने वाले मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का मुआयना किया और उधर दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर सर गंगाराम अस्पताल के एमएस प्रोफेसर डॉक्टर अतर ने उन्हें ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तमाम सहूलियात बारे तफसील से बताता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मरीजों को हर मुमकिन बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे कि कनाडा की रियासत ओंटारियो में बर्फानी तूफान के बायस 100 से ज़ायद गाड़ियां आपस में टकरा गई। कनाडा में कई शहरों को बर्फ के तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया। हादसा लंदन और टेलबरी के दरमियान हाईवे पर पेश आया। पुलिस ने ड्राइवरों को सड़कों से दूर रहने की वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान ने तकरीबन 14 करोड़ अफराद की जिंदगियों को मुतासिर किया। तकरीबन 15 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। क्रिसमस की छुट्टियों में शहरियों को सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई। चीन ने खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका ताइवान के रेड लाइन अबूर ना करे। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा कि अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से फ़ोन पर बात की और कहा कि अमेरिका धौंस धांधली और दूसरे ममालिक को दबाने की पॉलिसी तर्क कर दे। वांग ने अमेरिका पर चीन की तरक्की को दबाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि चीन को अमेरिका के जायज़ खदशात पर तवज्जो देनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि एंटोनी ब्लिंकन ने चीनी वज़ीर खारजा से बाहमी ताल्लुकात को जिम्मेदारी से मुनज़्ज़म करने पर तबादला ख्याल किया है। अमरीकी वज़ीर खारजा ने यूक्रेन जंग से मुतालिक अपनी तशवीश से भी मुतालिक भी बताया। चीन ने अमरीका को यूक्रेन जंग के बहरान में जिम्मेदाराना किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। अब आपको खेलों की दुनिया से कुछ बताएं कि मेसी की अरबी पोशाक की कीमत 20 करोड़ लग गई। मेसी को अमीर कतर ने पुश्त वर्ल्ड कप जीतने पर पहनाई थी। मेसी की फीफा वर्ल्ड कप को उठाने से पहले पहनाई गई पुश्त को ओमान के रुकन पार्लियामेंट ने खरीदने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कतर 2022 वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस के खिलाफ अर्जेंटाइन की फतह के बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने
2022 वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी लियोनेल मेसी को कतरी बुश्त का तोहफा दिया था। शेख तमीम ने वर्ल्ड कप पेश करने से पहले मेसी को ये बुश्त पहनाई थी। लोगों के चेहरों पर कहकहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज फनकार मोइन अख्तर का 72वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। फन की दुनिया में मोइन अख्तर वो नाम है जिसके बगैर पाकिस्तान टेलीविजन और उर्दू मज़ाह की तारीख नामुकम्मल है। टीवी ड्रामे हो या फिर सिल्वर स्क्रीन, मोइन अख्तर ने हर जगह अपनी लाजवाल अदाकारी के अनमट नकोश छोड़े। ड्रामा सीरियल रोजी में वो अपने फ़न की बुलंदियों पर नजर आए। स्टेज शोज़ की बात की जाए तो मोइन अख्तर का डंका ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि दुनिया भर में बजा। यस सर ईद, नो सर ईद, बेबया मोइन अख्तर, बकरा किस्तों पर आपकी यादगार स्टेज शोज़ हैं। पाकिस्तान ये अजीम फनकार 22 अप्रैल 2011 को अपने करोड़ों मद्दाहों को सोगवार छोड़कर जहान फ़ानी से कूच कर गए, मगर फिर भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि लोगों के चेहरों पर कहकहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज फनकार मोइन अख्तर का 72वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। फन की दुनिया में मोइन अख्तर वो नाम है जिसके बगैर पाकिस्तान टेलीविजन और उर्दू मज़ाह की तारीख नामुकम्मल है। टीवी ड्रामे हो या फिर सिल्वर स्क्रीन, मोइन अख्तर ने हर जगह अपनी लाजवाल अदाकारी के अनमट नकोश छोड़े। ड्रामा सीरियल रोजी में वो अपने फ़न की बुलंदियों पर नजर आए। स्टेज शोज़ की बात की जाए तो मोइन अख्तर का डंका ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत में बजा बल्कि पूरी दुनिया में बजा। यस सर ईद, नो सर ईद, बेबया मोइन अख्तर, बकरा किस्तों पर आपकी यादगार स्टेज शोज़ हैं। पाकिस्तान ये अजीम फनकार 22 अप्रैल 2011 को अपने करोड़ों मद्दाहों को सोगवार में छोड़कर जहान फ़ानी से कूच कर गए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए सुनते रहिए कोहिनूर न्यूज़।